Hello everyone. Today we will study about the topic of concurrent processes. We will see in detail what are the synchronization and deadlocks. What is a concurrent process? Processes which works together due to some reason. Okay, either they are sharing something or they are trying to achieve the same objective. कोई common objective है जिसको वो achieve करना चाह रहे हैं. तो इसमें जो रीजन हो सकती हैं. फर्स्ट रीजन इज कि आपके सिस्टम की जो रिसोर्सेज हैं दे आर शेयर्ड एंड यू आर इन अ मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, सो दे आर शेयरिंग सिस्टम रिसोर्सेज. तो ये बड़ा लेसर लेवल ऑफ कंकरेंसी होता है. फॉर एग्जांपल फ्यू प्रोसेसेस दे आर कंपीटिंग with each other to share the CPU. But then very important is to share the data at the database. जो या कोई और प्रोसेस है उसको शेयर कर रहे हैं. दो प्रोसेसेस हैं जो किसी और प्रोसेस को, किसी डेटा को, किसी डेटाबेस को, किसी ऐसी चीज को शेयर कर रहे हैं. सो दे आर वर्किंग कंकरेंटली. और देन देयर कैन बी कंकरेंट प्रोसेसेस. जिस हमने थ्रेडिंग की बात की थी कि वी डिवाइड द टास्क इनटू सब टास्क्स so that they can execute in parallel. So they are concurrent processes because eventually they are going to achieve the total, in nutshell, the objective to execute that process. And then again, we can have a parallel execution of tasks within one process, which are actually doing multiple or different types of tasks, but eventually again they are contributing to the same cause. For example, word processor जिस तरह हमारा है, तो उसके अंदर we would be doing an editing, formatting, spell checking, printing, or other stuff together in one program. So these are called concurrent processes. जब हम concurrent processes की बात करते हैं तो concurrency के अंदर जो one of the major issue is that is cooperation, because cooperation among the processes is really very necessary. तो जब cooperation होगा तो जब भी वो cooperate करेंगे they need to synchronize. Synchronization क्या होती है? It's like scheduling के in which order they are going to execute or they are going to access the shared thing. किस order में execute होंगे, किस order में shared चीज को use करेंगे. That is the synchronization. And once they have to do the synchronization and the cooperation, they need to have a very effective communication among them. तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है ना वो भी काफी इफेक्टिव होनी चाहिए. जब हम कंकरेंट प्रोसेसेस की बात करते हैं और हम कह रहे हैं कि यस दे नीड टू सिंक्रोनाइज विद ईच अदर, दे हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, हैव टू कोऑपरेट, सो दे नीड टू हैव सम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ उनमें क्वालिटीज या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होनी चाहिए. नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर स्टेट नीड्स टू बी शेयर्ड अमंग द अदर प्रोसेसेस. So the current processes जो concurrent processes हैं उनकी state जो है वो एक तो shared होती है among the processes. दूसरा very important is the result of execution cannot be predicted because of relative execution, because they are sharing the data. तो result क्या होगा execution का? It's not deterministic. So because it's you cannot predict it, so that's why it's also non-deterministic as well. कि आप पहले से determine नहीं कर पाते कि इसका eventually जो है वो result क्या निकलेगा. So cooperating processes क्या है? ऐसे processes which affects other processes or they can get affected by other processes. Or generally we provide the cooperation mechanism in our systems. Reason क्या होती है? One of the reason is information sharing. कि आपके जो processes हैं because they want to have an access to the same data or same information, so we share that data or information among multiple processes. दूसरी reason क्या होती है? We do have physical multi-core or multi-process architecture and we want to have a computation speed up. So what we do, we divide the process into multiple subtasks and we try to run in parallel. और आपको पता है कि अगर आप सब टास्क में डिवाइड करते हैं तो इवन आपको फिजिकल पैरेललिज्म नहीं भी मिल रहा हो तो भी उसके बावजूद आप उससे पैरेललिज्म ना होते भी काफी सारे बेनिफिट्स कर देते हैं. जैसे कि हमने लास्ट में बात की थी कि जब आप उसे सब थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं और वो जो थ्रेड्स हैं जब वो ब्लॉकिंग की बात आती है तो ब्लॉकिंग के केस में थ्रेड बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस अनदर थ्रेड इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, जिसकी वजह से आपका वो जो कॉन्टैक्ट स्विच के ओवरहेड्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. देन
आप जब थ्रेड्स में या सब टास्क में डिवाइड करते हैं, सो एक्चुअली यू बिल्ड द सिस्टम इनटू अ मॉड्यूलर वे। आप मजीद लेवल क्रिएट कर देते हैं मॉड्यूलराइजेशन के, विच मेक्स द कोड इजी टू मैनेज, इजी टू मॉडिफाई, इजी टू राइट। तो वो आपका जो मॉड्यूलरिटी के बेनिफिट है आप वो कर लेते हैं। And then eventually you achieve a convenience as well in a single application. If it has multiple types of tasks, you can perform the same tasks, और उन टास्क को जब आप करते हैं तो आपको पैरेलली आप कर लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यू कैन डू दी एडिटिंग, स्पेल चेकिंग एंड अदर स्टफ इन। इसी तरह इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दो तरह की होती हैं, एक होती हैं रीयूजेबल रिसोर्सेज और दूसरी होती है कंज्यूमेबल रिसोर्सेज। रीयूजेबल रिसोर्सेज वो होती हैं जिनको आप बार बार यूज कर सकते हैं, विच डज नॉट गेट कंज्यूम्ड बाय देयर यूजेज। यदि आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं, सो दे डू नॉट गेट कंज्यूम्ड। जैसे टिपिकली हमारी हार्डवेयर रिसोर्सेज होती हैं, लाइक प्रोसेसर है, मेमोरी है, रैम, डिस्क वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी रीयूजेबल रिसोर्सेज होती हैं। जबकि जो कंज्यूमेबल रिसोर्सेज हैं वो होती हैं जो कि आप जब उन्हें ले लेते हैं तो वो कंज्यूम हो जाती हैं। जैसे ट्रांजिएंट डेटा होता है, ऐसा डेटा जो कि टेम्परेरी होता है, शॉर्ट टर्म के लिए प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल सिग्नल्स हैं आपके यूनिक्स सिस्टम के अंदर, यूनिक्स बेस्ड सिस्टम से वो सिग्नल्स यूज होते हैं जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को भेजे जाते हैं। इसी तरह पाइप्स हैं, पाइप्स जो हैं वो आपके जनरली जो पाइप्स हैं वो टेम्परेरी होती हैं। एक पाइप में जो आप इनपुट में जो भी डेटा रहते हैं, इट्स बीन गिवन टू दी अदर प्रोसेस इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम, तो वो भी आपकी कंज्यूमेबल रिसोर्सेज हैं। और रीयूजेबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो है जैसे पहले बताया कि जिनको आप बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे हार्डवेयर। इसमें दो तरह की रीयूजेबल रिसोर्सेज होती हैं, एक होती है स्पेस मल्टीप्लेक्स्ड और दूसरी होती है टाइम मल्टीप्लेक्स। स्पेस मल्टीप्लेक्स कौन सी है? जिनमें जो डिवीजन है रिसोर्स की वो इन टर्म्स ऑफ स्पेस होती है। कुछ पार्ट स्पेस का एक को मिला होता है, कुछ पार्ट दूसरे को मिला होता है। जबकि टाइम मल्टीप्लेक्स्ड में आपकी रिसोर्स चीजों के बीच में डिवाइड नहीं होती, जैसे कि प्रोसेसर है, उसमें क्या होता है, टाइम बाय टाइम उसकी डिवीजन होती है। तो जनरली एक बड़ा जो मेजर फर्क है वो ये होता है कि स्पेस मल्टीप्लेक्स रिसोर्सेज में एट द सेम टाइम जनरली देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस व्हिच आर एक्सेसिंग स्पेस मल्टीप्लेक्स रिसोर्स। जैसे रैम के ऊपर आप देखते हैं, डिस्क के ऊपर आप देखते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम होते हैं, लेकिन उस स्पेस की डिवीजन हो जाती है। टाइम मल्टीप्लेक्स में क्या होता है कि मोस्टली जिस तरह से होती हैं कि आपका पूरी की पूरी रिसोर्स एक वक्त में एक ही प्रोसेस को मिलती है। तो वो एक प्रोसेस जो है रिसोर्स को एक्सेस करता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि उसका टाइम खत्म होता है तो फिर दूसरी प्रोसेस मिलता है। तो दे आर कॉल्ड टाइम मल्टीप्लेक्स रिसोर्सेज। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेस कंडीशन। अब हमने बात कर ली जी ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, दे नीड टू गेट सिंक्रोनाइज्ड, or why they are cooperating, because they are accessing some sort of a resource. So we do have a race condition. Race condition क्या होती है जी? It's a situation in which you do have multiple processes and they are trying to manipulate some sort of a shared data concurrent. अब जब भी ये रेस कंडीशन होगी, so you will end up with a situation in which जब भी वो जो शेयर डेटा होगा उसकी फाइनल वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी कि कौन सा जो प्रोसेस है उसने पहले एक्सेस किया, किसने आखिर में उसको एक्सेस किया। ठीक है, एंड इट इज वेरी वेरी मच कॉमन in concurrent and cooperating processes because they are generally sharing some sort of a shared data, ठीक है, जो कि जिसको रीड या राइट करना होता है। तो इस रेस कंडीशन को अच्छे तरीके से करने का तरीका क्या होता है, क्या इसको कि ये बहुत ही अनडिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट ना करें, दे नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड। अगर हर कोई एक्सेस करना शुरू कर देगा एट द सेम टाइम तो उसमें ब्लॉकिंग भी होती है। अब मल्टीपल उसको एक्सेस करेंगे तो एक वो रिजल्ट जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा अनडिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा। तो ये उसके नीचे एग्जांपल दी हुई है। तो फॉर एग्जांपल सपोज यू डू हैव अ प्रोसेस which is I equals to next slot, then wait, then Q I equals to job 0, then I plus plus and next slot. यहाँ पे process J equals to next slot, then Q J equals to job 1 and then J plus plus and next slot equals to J. ठीक है, इसमें जो next slot है, next slot is a shared variable, दोनों जो हैं वो उसको share कर रहे हैं। So they basically these two processes are having a race condition of this variable named as next slot. अब इसमें execution depend करेगी कि किस तरीके से आपने
वो किस तरह होगी कि फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू जो है वो आपकी है, नेक्स्ट स्लॉट की वैल्यू लेट्स से बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ दीज प्रोसेसेस इज 5। तो आई क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे हो जाएगा जी 5, उसके बाद देयर इज वेट एंड देन क्यू ऑफ आई की वैल्यू क्या है 5 है, 5 में आपने कौन सी जॉब पुट करनी है, प्लेस करनी है, जॉब 0, तो आप इसको क्यू 5 में कर देंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे और नेक्स्ट स्लॉट को क्या कर देंगे, आई कर देंगे, मीन्स के नेक्स्ट स्लॉट अब क्या बन गई है, 6 बन गई है। इसके बाद जब जे जो है वो इसको प्रोसेस करेगा, क्यू अगेन क्यू जे वो भी आपका शेयर है। अब जे इसको जब प्रोसेस करेगा, जे देखेगा कि जनाब नेक्स्ट स्लॉट की वैल्यू क्या है, जे को मिलनी क्या चाहिए, जे को यहाँ पे मिलनी चाहिए 6 और क्यू ऑफ जे जो है ये क्या करेगा, 6 के अंदर जॉब 1 डाल देगा और जे प्लस प्लस करके नेक्स्ट स्लॉट को क्या कर देगा, जे मीन 7 कर देगा। लेकिन अगर ये सिंक्रोनाइज्ड ना हो, जैसे कि बाजार यहाँ सिचुएशन नजर आ रही है, क्योंकि जे ये वेट कर रहा है और इस टाइम में जे ने इसको एक्सेस कर दिया, ठीक है, तो आपको अगर आप इसको टाइमलाइन समझे यहाँ से यूं वर्टिकल में, तो यू कैन सी कि जी आई ने नेक्स्ट स्लॉट लिया, आई को क्या वैल्यू मिली 5, जे को क्या मिली 5, ठीक है। यहाँ पे जब इसने किया तो ये किस में पुट करेगा 5 में, लेकिन इससे पहले ही जे को ये नेक्स्ट स्लॉट की वैल्यू मिल गई थी और 5 मिली थी, और जब इसने जॉब 1 डाली तो जॉब 1 कहां प्लेस करेगा, 5 में प्लेस, और उसके बाद जे को प्लस प्लस कर रहा है और फिर नेक्स्ट स्लॉट को जे कर रहा है, तो ये इसको नेक्स्ट स्लॉट को 6 कर देगा, जबकि यहाँ पे क्या मिलेगी इसे, क्यू आई आई को इसको मिलेगी जी जॉब 0, तो ये क्यू आई आई यहाँ पे भी क्या मिलेगा, इसको क्यू को 5 ही मिलेगा। तो जो 5 तो उसमें ऑलरेडी जॉब 1 थी, ये नेक्स्ट में जानी चाहिए, इसने नेक्स्ट की बजाय क्या किया, उसी जगह पे जॉब 0 प्लेस कर और आई प्लस प्लस किया, तो आई की वैल्यू क्या थी 5 थी, ये से 6 करेगा और नेक्स्ट स्लॉट क्या कर देगा, 6 कर देगा। इसने ऑलरेडी 6 किया हुआ था, इसने फिर उसको दोबारा से 6 ही किया, जिसकी वजह से क्या होगा, सारा काम गलत, क्यू की जो दो एक ओवरराइटिंग हो गई, दूसरा नेक्स्ट स्लॉट की वैल्यू भी गलत है, दो लोगों ने प्रोसेस किया है, ये स्टार्ट होने से पहले 5 थी, जब दोनों ने प्रोसेस कर लिया तो दोनों को एक तो अलग जगह होना चाहिए था, और जो नेक्स्ट स्लॉट की वैल्यू इट शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 2, पहले एक करता और फिर दूसरा करता और वो 7 हो जानी चाहिए, जबकि इस सिचुएशन में क्या हो रही है, नेक्स्ट स्लॉट की वैल्यू क्या बन रही है 6, तो जो भी नेक्स्ट आएगा वो उसको प्लेस भी 6 में, ठीक है। तो अगर यही दोबारा दोनों रिपीट हो जाते हैं तो अगेन सेम सिचुएशन, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पे आया और इट वेंट फॉर द वेटिंग बिकॉज इट्स डूइंग सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोसेसिंग ऑन टू दिस शेड थिंग, शेड क्या थी जी, नेक्स्ट स्लॉट थी, नेक्स्ट स्लॉट is really playing an important role. तो next slot need to be synchronized, ठीक है जी, उसको किसने एक्सेस करना है, उसका मैकेनिज्म होना चाहिए, और उसके लिए जो मैकेनिज्म यूज करते हैं हम वो कोई ना कोई लॉकिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, अनटिल अनलेस के आपका आपका ये सॉरी नेक्स्ट आपने इसके लिए मैकेनिज्म क्या यूज करना है, आपने लॉकिंग मैकेनिज्म यूज करना है। तो ये लॉकिंग मैकेनिज्म क्या करेगा, ये इस नेक्स्ट स्लॉट को लॉक कर देगा ताकि जे जो है ये इस नेक्स्ट स्लॉट को भी एक्सेस ही ना कर सके, क्योंकि अगर इसने एक्सेस कर लिया तो इसको तो 5 मिल गई, जबकि ये इसको इन प्रोसेस है इसके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो इस जो ये जो रेस कंडीशन है इसको वाइड करने के लिए वी डू सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, और सिंक्रोनाइजेशन का तरीका है बड़ा जो कॉमन है क्या है, लॉकिंग। तो आई होप ये प्रॉब्लम सबको समझ आ गया, प्रॉब्लम क्या है, किसी को अगर समझ ना आए तो पूछना। तो मुझे सही तरह समझ नहीं आया थोड़ा सा। देखें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दो प्रोसेस हैं, आप ये शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करें। अब हम बात करें कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की, ये अलहदा प्रोसेस है, ये अलहदा प्रोसेस है, ठीक है। लेट से एक क्यू बनी हुई है, जैसे जॉब्स को प्लेस किया जाता है यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में, क्या आपने एक जॉब परफॉर्म करनी है, शेयर्ड क्यूज का कॉन्सेप्ट है, तो एक शेयर्ड क्यू है, उस शेयर्ड क्यू में जी आपने जो है ना वो जॉब को प्लेस करना है। लेट्स से यू मैन्युफैक्चर समथिंग एंड यू प्लेस इन अ रनिंग क्यू, तो क्यू में दो चीजें जो दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक ही जगह पे तो नहीं आ सकती, अलहदा अलहदा पे ही आनी है। अलहदा किस में आनी चाहिए, दिस इज गोइंग टू बी टोल्ड टू अस बाय नेक्स्ट लॉट, तो नेक्स्ट लॉट ये बताता है कि किस में आपने प्लेस करना, ठीक हो गया। आई
उसके लिए इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो जो लोकली ये प्रोसेस करता है और इसका लोकल वेरिएबल जे, आए इसकी वैल्यू ले लेता है। ये कहता है जी कि नेक्स्ट स्लॉट क्या है जी, इसने इसकी नेक्स्ट स्लॉट की वैल्यू ले ली, तो इसने बताया कि जी इसकी वैल्यू है 5। इससे पहले एज्यूम करेंगे 5 थी, 5 स्लॉट्स, 4 जो है 0 to 4 फिल थी, तो अब 5th स्लॉट जो थी वो खाली थी, तो उसने कहा जी 5th आ रही है, 5 आ रही है, तो इसने इसकी वैल्यू गेट की, तो नेक्स्ट स्लॉट इस शेयर्ड वैल्यू की क्या मिल गई, वेरिएबल की क्या मिल गई, 5 मिल। इसके बाद ही हैज टू वेट, इसका कुछ वेटिंग टाइम था टू डू द प्रोसेसिंग, ठीक है। जे के केस में क्या था, जे ने भी नेक्स्ट स्लॉट की वैल्यू एक्सेस कर ली। अब यूं टाइम चल रहा है आपका वर्टिकली जो है ना, आपका यूं आपका टाइम चल रहा है, एज्यूम कर लें कि ये आपका टाइम है, ठीक। ये दो कंकरेंट प्रोसेस हैं, इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे हैं ऑन टू टू प्रोसेसर्स। तो जे ने भी नेक्स्ट स्लॉट की वैल्यू ली, आई को क्या मिली, यहां पे क्या थी 5, इसकी वैल्यू अपडेट नहीं हुई थी, तो इसको भी क्या मिलेगी 5, मींस के जे की वैल्यू क्या हो गई 5, ये वेट में चला गया। यहां पे जब जॉब एक जो उसने प्रोड्यूस करनी थी उसने प्लेस की इस क्यू के अंदर, तो क्यू में कहां पे प्लेस करेगा, जे की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। इसके बाद इसने जे प्लस प्लस करके क्या कर दिया, जे को 6। यहां पे क्यू में जब ये प्लेस इसने उसे प्रोसेस किया, आई की वैल्यू ले चुका हुआ था, तो जब उसने इस जॉब को प्लेस करना है तो ये कहां प्लेस करेगा, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू भी 5 है, तो ये कहां प्लेस करेगा, इसने पहले ही प्लेसमेंट की, इसने जॉब वन को कहां प्लेस किया, क्यू के कौन से एलिमेंट में, शेयर्ड क्यू के 5th में। इसने कहां प्लेस किया, इसने भी 5th में ही कर दिया, जबकि होना किस में चाहिए था, उससे नेक्स्ट में आना चाहिए, तो इसने भी 5th में कर दिया, और आई प्लस प्लस कर दिया, तो इसने भी इसको 6 कर दिया। यहां पे इसने इससे पहले प्रोसेस करके जे की वैल्यू 6 आ रही थी, नेक्स्ट स्लॉट को क्या कर दिया 6, इसकी वैल्यू क्या 6, इसने भी नेक्स्ट स्लॉट को क्या कर दिया, इसके बाद किया 6, जबकि असल में इन दोनों की एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट स्लॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 7, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि दोनों में से कोई भी मुंह उठा के शेयर्ड चीज को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। इसका तरीका क्या होता है, आप जब भी शेयर्ड को एक्सेस करेंगे आप इसके लिए लॉकिंग करते हैं। लॉकिंग क्या होती है कि जब आई ने नेक्स्ट स्लॉट को एक्सेस किया है और अब इसकी बेस पे इसने शेयर्ड क्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपने इस वेरिएबल को लॉक कर देना, अभी कोई और इसको एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। आपने एक्सेस किया, आपने इसकी वैल्यू को अपडेट किया, इसके बाद आप इसके लॉक को रिलीज कर देते हैं। जब आप इसे रिलीज कर देते हैं तो हाँ, अब इसको क्या वैल्यू मिलेगी, जब रिलीज के बाद मिलेगी, अब ये इसके बिल्कुल साथ नहीं एग्जीक्यूट हो सकता, ही हैज टू वेट, इज अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस, ही हैज टू वेट, तो इसको वैल्यू क्या मिलेगी, इसको 6 मिलेगी। एंड देन अब ठीक है, अब जॉब वन कहां जाएगी, 6 में जाएगी, जे प्लस प्लस होकर 7 होगा, जे की वैल्यू इसको मिलकर क्या बन जाएगी 7। नाउ दिस इज फाइन। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेंगे, लॉकिंग नहीं करेंगे, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, तो फिर ये प्रॉब्लम होगा, ठीक हो गया जी। और अब इसी वजह से मसला क्या आता है, आप एक शेयर्ड चीज को विदाउट लॉकिंग, विदाउट सिंक्रोनाइजेशन अगर मल्टीपल इकट्ठे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, सो यू कैन हैव अ डेडलॉक कंडीशन, ठीक है जी। डेडलॉक क्या होता है, आप चौक में जा रहे हैं, बड़ी कॉमन एग्जांपल, एक चौराहे में जाएं और अगर आपके सिग्नल्स ना हो तो क्या होगा, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, आप डेडलॉक में आ जाएंगे, आपकी ट्रैफिक जैम हो जाएगी उस सिग्नल के ऊपर। कभी पुलिस वाला ना हो और सिग्नल बंद हो तो क्या हो जाता है, यू कैन सी दैट। सो वो डेडलॉक क्यों होता है, बिकॉज एवरीवन ट्राइज टू क्रॉस दैट शेड चौक, वो जो चौक होता है आपका, वो सारा वो शेड होता है, सारे उसी चौक को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं एट द सेम टाइम। तो अगर वो सिग्नल्स नहीं होंगे तो सिग्नल क्या करते हैं, वो डेडलॉक को अवॉइड करते हैं, वो एक वक्त में एक साइड को एक्सेस देते हैं, बाकियों के लिए वो लॉक हो जाती है। रेड सिग्नल इज व्हाट, इट्स अ लॉकिंग मैकेनिज्म, तो लॉक कर देता है, एक वक्त में एक साइड को गुजारता है, और जो बाकी रिसोर्स, बाकियों के लिए वो जो शेयर्ड रिसोर्स है वो रुक जाती है। तो सिमिलर इसी है कि अगर आप मल्टीपल एक ही फिजिकल लेट से सारे जो है इकट्ठे हार्ड डिस्क को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठे रैम को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठे सीपीयू को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप नहीं कर सकते, तो डेडलॉक हो जाता है। दूसरी सिचुएशन एक और होती है डेडलॉक की, हमने लॉकिंग भी कर ली, हमने कहा जी डेडलॉक को अवॉइड करने का तरीका क्या है, लॉकिंग कर, लेकिन लॉकिंग ऐसी की कि जिसको रिसोर्स दिया वो जान ही नहीं छोड़ा,
उसने जनाब उसको परमानेंटली रख लिया है। सेम चौक के ऊपर समटाइम होता है सार्जेंट बड़े लंबे टाइम के लिए एक ही साइड की ट्रैफिक खोल देता है जहां रश हो गया। अब दूसरों को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। लेट से अगर वो एक ही साइड खुली रहे तो बाकियों के लिए क्या होगा, वो वैसे तो चौक खुला होगा, देयर इज नॉट अ प्रैक्टिकल डेडलॉक बट दिस इज अ डेडलॉक फॉर द अदर्स। ठीक है, सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टारवेशन। ये जो डेडलॉक की सिचुएशन होती है कि जिसमें कुछ को तो रिसोर्स मिल जाती है बाकियों को नहीं मिलती, दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास का सर्कुलर डेडलॉक है, एक एक रिसोर्स को एक्सेस करता है, दूसरे को भी चाहता है, तीसरे को भी चाहता है, तो वो डेडलॉक सर्कल होता है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड डेडलॉक्स। So why generally the deadlock occurs? Because you give an exclusive access to the devices, files, shared resources. तो वो आपके जब आप exclusive access देंगे तो deadlock हो सकता है, और यह हार्डवेयर के लिए भी हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल जो आपकी एप्लीकेशन है दे आर ट्राइंग टू शेयर द सेम डेटा। आप अपना बैंक रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हैं, आपने एक चेक भी इशू किया हुआ है, आप एटीएम पे भी खड़े हैं और आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन जगह से इकट्ठे एक ही रिकॉर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नेवर डेडलॉक। और अब इसमें कितना बड़ा इशू हो सकता है, अगर वो रिकॉर्ड लॉक ना हो, आपके अकाउंट में पड़े हैं लेट्स से 20,000 रुपीज, ठीक है, और आपने 15,000 रुपए का चेक दिया हुआ है, आप 10,000 रुपए एटीएम से विड्रॉ कर रहे हैं, और 20,000 की 18,000 की आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं ऑनलाइन। अगर तीनों इकट्ठे एट द सेम टाइम हो, तीनों में सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहली चेकिंग क्या होगी, व्हाट इज द अकाउंट बैलेंस। तो वो अकाउंट बैलेंस पता लगा जी 20,000, तीनों ने साइमल्टेनियसली चेक किया। अब 20,000 तो चेक किया, उसके बाद साथ ही ट्रांजेक्शन हो जाती है, और तीनों ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो तीनों के लिए 20,000 से कम थी, लेकिन इन नटशेल कितनी हुई, 10,000 एक है, 15,000 एक है, और 18,000 एक है, तो टोटल कितनी होगी 43,000 रुपीज। तो जबकि टोटल तो 20,000 थे, तो ये लॉक होनी चाहिए, जो डेटाबेस है इसलिए डेटाबेस की रिकॉर्ड लॉकिंग होती है कि आपका एक वक्त में एक जो है वो उसको एक्सेस करता है, अदरवाइज इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है जनाब, और डेडलॉक्स जो हैं वो क्यों अक्सर होते हैं जी, डेडलॉक अक्सर अक्सर होते हैं खास तौर से स्टारवेशन वालों जो केस होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज के केस। ठीक है, आपके साथ डेडलॉक हो जाता है कि आपने लेट से एक प्रिंट लेना है और एक बंदे ने 300 प्रिंट बेच दी है, तो वो डेडलॉक या स्टारवेशन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपको वो एक्सेस ही नहीं मिल रही। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो जनरली जो सीक्वेंस होता है किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने को, क्या होता है, आप सबसे पहले रिसोर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आई नीड टू हैव दिस रिसोर्स, देन यू यूज दैट रिसोर्स, एंड देन यू रिलीज दैट रिसोर्स। इसी के हिसाब से हम फिर अपना जो है ना डेडलॉक को हैंडल करने के लिए एक मैकेनिज्म। डेडलॉक करेक्टराइजेशन अगर हम देखें तो एक बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म है डेडलॉक को अवॉइड करने का, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बट दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन can result in a starvation as well, because what we say mutual exclusion say probability and statistics आप सबने पढ़ी है, you must have studied mutually exclusive events. What are those? तो बता सकता है mutually exclusive events क्या होते हैं? More than one participants. नहीं, more than one participants तो हैं, but what is a mutually exclusive O- event? or organized by one or more than one person. नहीं नहीं, mutually exclusive ये होता है कि if you are having multiple option only one can correct one time. ठीक है, जैसे यू रोल अ डाइस, तो एक वक्त में एक ही फेस हो सकता है उसका, या 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 या 6 होगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, और इसी तरह अगर आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन अप्लाई करते हैं कि एक वक्त में एक बंदा सिग्नल यूज करेगा, एक वक्त में एक प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्स को यूज करेगा, so that becomes a mutual exclusion. So this is a mechanism through which we handle, but this can create a deadlock अगर ये indefinite की तरफ जाते हैं। अगर आप वो जो है एक रिसोर्स को दे दिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन और बाकियों को नहीं दे रहे, तो that creates। then hold and wait। hold and wait क्या है जी, कि किसी और प्रोसेस को चाहिए रिसोर्स, ये P1 है और ये रिसोर्स 1 है और ये P2 है
और इधर रिसोर्स 2 है, ये कोई और रिसोर्स है, ठीक है जी। तो P1 ने इस रिसोर्स को भी होल्ड किया हुआ है और साथ ये चाह रहे हैं कि जनाब मैं ये रिसोर्स भी फारिग हो जाए तो मैं इसका इंतजार करूं, तो ये भी ये P2 यूज कर रहा है, एक रिसोर्स होल्ड की भी और दूसरे का वेट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड होल्ड इन वेट, ठीक है। ये तो डिस्कनेक्ट होगी तो काइंडली दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, 10 मिनट के। इसके बाद नो प्रियम्पशन वो अभी जो बताया आपको कि जी जब तक एक प्रोसेस जो है वो अपना काम कंप्लीट नहीं करता वो रिसोर्स को छोड़ता ही नहीं है, सो दैट इज रिसोर्स प्रियम्पशन, नो प्रियम्पशन, कि आप प्रियम्प्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है। एक ही रिसोर्स को आपने दिया हुआ है, वो नॉन प्रियम्प्टेबल रिसोर्सेज हैं, तो इट विल कीप ऑन एक्सेसिंग दिस। देन इज सर्कुलर वेट, ये सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है, इसमें यही वाली सिचुएशन है जी, P3 है और एक और रिसोर्स है R4 R3 R समथिंग, ठीक है। P2 ने इसको होल्ड किया है और साथ ही वेट किसका कर रहा है, R3 का, और P3 ने इसको होल्ड किया है और साथ ही वेट किसका कर रहा है, R1 का, सो दिस इज व्हाट सर्कुलर वेट, ठीक है। तो अब ये तो पूरा डेडलॉक हो जाता है, तो कोई भी किसी भी रिसोर्स को आप एक्सेस भी नहीं कर पा रहा होता और वेट कर रहा होता है दूसरी रिसोर्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन को हम कोशिश ये करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सम एटॉमिक ऑपरेशन बनाने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक ऑपरेशन क्या होते हैं, एटम, व्हाट इज एटम, एज फॉर एज अ लॉन्ग very old definition is concerned, atom is the smallest particle of the universe, which is an incorrect definition now, but बड़े अरसे तक एक definition हुआ करती थी कि atom क्या है, smallest particle of the universe, then we found more particles as well, जो smallest है, और we use them for explosion and all that. So anyways, but atom या atomic has become a property, ठीक है, in literature and जो language है, atomic is what which is indivisible, ठीक है। So operation that cannot be interrupted is called atomic operation. For example, जनरल बात करें लाइफ में तो टर्न ऑफ द लाइट, आपने लाइट बटन दबा दिया, so now this is atomic operation, you cannot stop it to turn off the light. इसी तरह खिड़की पे आपने कोई चीज मार दी और वो खिड़की टूट रही है, cannot stop the breaking of window. But non-atomic क्या है, you are filling a glass of water, well you can stop halfway, आप बीच में रोक सकते हैं, 70% पे रोक सकते हैं. Walk to the door, you're walking towards the door, you can stop in between as well. So this is non-atomic operation, ठीक है जी। So इसी तरह हार्डवेयर के अंदर आपके एटॉमिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन होता है दो दो इंस्ट्रक्शंस का, जैसे लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन होती है, आपने असेंबली पढ़ना है, you might have used this instruction, एक सिंगल लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन वो आपकी एटॉमिक होती है, you cannot interrupt in between. इसी तरह टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन होती है, जो वेरिएबल की वैल्यू को टेस्ट करती है और फिर सेट करती है। Now comes the synchronization. Synchronization क्या है जी, तो ये cooperating processes हो गए, we are having deadlocks, we have a race condition, race condition की वजह से भी आपके deadlocks हो सकते हैं, आपकी starvation हो सकती है। So what we have to do is we have to provide a synchronization mechanism. What synchronization does, it provides a mechanism which facilitates the concurrent or competing process, जो किसी एक same resource के लिए compete कर रही है, ठीक है। और synchronization को achieve करने का जो तरीकाकार है वो क्या है, we do either the mutual exclusion or and we provide a critical section, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है जी, अभी बात की हमने, at one time only one task or a subtask or a process perform something onto the shared data, ठीक है। मतलब क्या हुआ, तो जब कोई और उस शेयर चीज को एक्सेस कर रहा है तो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेस दैट शेयर, ठीक है, हम उसको उस वक्त में एक्सेस नहीं करेंगे। और क्रिटिकल सेक्शन क्या है, वो पीस ऑफ कोड, आपने जो कोड लिखा है उस कोड में वो पोर्शन, वो एरिया जो कि सेंसिटिव है या जहां पे आप उस शेयर चीज को एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल रीजन। समझ रहे, पूरे कोर्स में, पूरे कोड में तो आप सारी शेयर चीज को नहीं एक्सेस करते,
आपने कहीं उस शेयर्ड चीज को एक्सेस किया, सो दैट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, एक वक्त में एक कोई शेयर डेटा को एक्सेस करे। तो अब इन दोनों का मिक्सचर हम यूज करते हैं। सो क्रिटिकल सेक्शन क्या है जी, जहां पे आप शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। शेयर्ड डेटा को, वो मेमोरी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। और द एरिया ऑफ प्रोसेस विच इज सेंसिटिव टू इंटर प्रोसेस कॉम्प्लिकेशन, जिसे हम क्रिटिकल सेक्शन में कहते हैं। इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं विद म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। हम कहते हैं कि एक वक्त में एक प्रोसेस जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में होगा, एक से ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन में नहीं हो सकते। दिस इज द मेन थिंग जो हम कह रहे हैं ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्रिटिकल सेक्शन पे अप्लाई होती है। एक तो क्रिटिकल सेक्शन होगा, दूसरा वो क्रिटिकल सेक्शन हमारी कोशिश होती है छोटे से छोटा हो, लिमिटेड, सिर्फ वही चीज हो क्रिटिकल सेक्शन में जो कि रेलिवेंट हो, ठीक है। आपने एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ी, उसके अंदर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग की, तो आप क्या कहते हैं, एक्सेप्शन के लिए जो सेंसिटिव चीजें होती हैं उन्हें किस में डालते हैं, ट्राई ब्लॉक में डालते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए रिकमेंडेशन क्या होती है, सिर्फ उतना ही कोड ट्राई में डालें विच इज सब्जेक्टिव फॉर एक्सेप्शन, जो है जहां पे एक्सेप्शन हो सकती है या एक्सेप्शन का इफेक्ट आएगा, सिर्फ उस कोड को ट्राई में डालें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ज्यादा कोड डाल दिया और एक्सेप्शन आ गई और नीचे कोई कोड था जो कि इररेलेवेंट है, तो आपका मसला हो जाएगा, ठीक है, कि आपके जो ही एक्सेप्शन आएगी वो वाला कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए आप ट्राई ब्लॉक को छोटे से छोटा रखें। तो सिमिलर इज फॉर क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ वही कोड आएगा जो कि शेयर डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो इसका साइज कम से कम रखना है। तो a good solution is what following four conditions hold. No two processes may be simultaneously in their critical section. एक वक्त में कोई दो प्रोसेसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं हो, ठीक है। सो क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा जी, जो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच इज सेंसिटिव फॉर योर एक्सेसिंग द शेयर डेटा, जहां पे आप अपने शेयर डेटा को, शेयर कीज को एक्सेस कर रहे हैं। हमने बात की कि इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, चीजें हो और वही एरिया हो जहां पे हमने शेयर चीज को एक्सेस करना है। तो ये हम बात करते हैं चार कंडीशंस क्या हैं जी फॉर गुड स्टूडेंट। नंबर वन, एक वक्त में सिर्फ एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में होगा। नो टू प्रोसेसेस में बी साइमल्टेनियसली मींस वी आर एम्प्लॉइंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन हियर, ठीक है। यहां पे हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अप्लाई कर रहे हैं। नंबर टू, नो assumption may be made about speeds and number of CPUs, कि जी अच्छा जी कितने CPUs हैं या किस स्पीड में ये जो है ना एग्जीक्यूट होगा। नो प्रोसेस रनिंग आउटसाइड इट्स क्रिटिकल सेक्शन में ब्लॉक अदर प्रोसेसेस, ठीक है। अब होगा क्या, जब हम एक वक्त में एक को अलाउ करेंगे तो उस एक की वजह से जो बाकी एक्सेस करना चाह रहे हैं दे विल गेट ब्लॉक, वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो वो एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है। बट जो प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया है, उस सेक्शन से बाहर है, वो किसी और प्रोसेस को ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। और इसके लिए दोनों केसेस हैं, एक क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया और ब्लॉक नहीं कर रहा, ठीक है। और दूसरा क्रिटिकल सेक्शन ही आपने इतना बड़ा बना दिया, इररिलेवेंट चीजें डाल दी कि उसकी वजह से दूसरे प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो। सो नो प्रोसेस शुड हैव टू वेट फॉरएवर टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, तो स्टारवेशन ना होती है कि ये ना हो कि कुछ प्रोसेसेस जो बेचारे वेट ही करते हैं कि अपने क्रिटिकल सेक्शन में वो एंट्री करें, तो ये ना हो कि कुछ को बिल्कुल एक्सक्लूसिव एक्सेस में। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने बात कर ली कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, कि वेयर वी आर हैविंग मल्टीपल सेट ऑफ प्रोसेसेस, so only one of them is going to get an access to the shared resource, ठीक है। तो अगर दो प्रोसेसेस हैं जो कि एक शेयर चीज को एक्सेस कर रहे हैं और वो उससे कुछ डेटा एक्सेस करना है, तो एक वक्त में सिर्फ एक को आप एक्सेस देंगे टू एक्सेस दैट शेयर रिसोर्स। सो सॉल्यूशंस क्या है जी क्रिटिकल सेक्शन के? नंबर वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट, जो हमने बात की, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर एक प्रोसेस जो अपने कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कोई और प्रोसेस उस वक्त अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं होगा फॉर द सेम रिसोर्स। ये याद रखिएगा, फॉर द सेम रिसोर्स, बिकॉज दीस डेज वी आर हैविंग मल्टी कोर आर्किटेक्चर, मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर्स। तो उसके अंदर दो अगर इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज को एक्सेस करें तो दैट्स फाइन, ठीक है, वो एक्सेस करें, लेकिन फॉर द सेम रिसोर्स
they cannot be in their mutual in their critical section. तो आपने उसको जो है ना एक वक्त में सिर्फ एक को एक्सेस। दूसरा, प्रोग्रेस, इफ नो प्रोसेस इज एक्सिक्यूटिंग इन इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन, और कोई ऐसा प्रोसेस है जो कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहिए, उसको फौरन से एक्सेस दे दे। इट शुड नॉट बी इन द वेटिंग स्टेट, वो सिर्फ वेट ना करता। और इसी तरह बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए। A bound must exist on the number of times that other processes are allowed to enter into critical section after a process has made a request. ठीक है, तो दूसरे प्रोसेसेस जो हैं वो बार बार उनके एक्सेस मिलती जा रही है, क्रिटिकल सेक्शन को एक प्रोसेस वेट करता जा रहा है, तो ये ना हो कि जनाब उसको एक्सेस कि कितने टाइम के लिए एक प्रोसेस जो है वो अपनी वेटिंग स्टेट के अंदर रहेगा। सो दे नीड टू बी अ लिमिट। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्यूशन है फॉर म्यूचुअल क्रिटिकल सेक्शन के लिए। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिथम अगर आपने बनाना हो तो उसका तरीका क्या है? लेट्स से यू हैव अ शेड वेरिएबल टर्न, initially turn equals to 0 and one turn equals to I, pi can enter its critical section. तो जब I की आ जाती है turn, तो okay, then process I can enter. So what the process I is going to do? Process I क्या करेगा? It will enter जब तक के वो I नहीं हो जाती, तो he is doing what here? He is doing wait. So this is a wait state. ठीक है, यहाँ पे वो wait कर रहा है, तो wait कर रहा है। वंस द वेट इज आवर, उस टर्न जो है वो आई हो जाएगी, तो आई के केस में क्या हो जाएगा? अब ये उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। तो रिसोर्स को कहाँ एक्सेस करेगा? इन इट्स क्रिटिकल रीजन और क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेगा, एक्सेस करने के बाद वो क्या करेगा? एंड में इस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाएगा और टर्न को क्या कर देगा? टर्न को नेक्स्ट कर देगा, जो भी नेक्स्ट बनती है, व्हिच इज जे। ठीक है, टर्न को जे कर देगा एंड देन ही विल एग्जीक्यूट इट्स रिमेनिंग सेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसका बाकी कोड अलग है, यहाँ पे इससे पहले भी और कोड है। ये क्रिटिकल सेक्शन का एरिया है, दिस इज होल क्रिटिकल सेक्शन रिलेटेड स्टफ। तो इसमें बीच में क्रिटिकल सेक्शन है और क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री डायरेक्ट नहीं है, उससे पहले वो वेट कर रहा है। वेट में क्या कर रहा है? वो वेट में चेक कर रहा है कि टर्न आई तो नहीं होगी, टर्न आई तो नहीं होगी। जो जे प्रोसेस होगा इसी तरह वो चेक करता रहेगा जी कि टर्न जे तो नहीं होगी, उसकी टर्न तो नहीं आती। अगर उसकी टर्न आ गई देन ही विल बी एबल टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन, अदरवाइज नहीं। और वंस ही इज एग्जिटिंग, तो ही विल चेंज इट टू विल चेंज द टर्न टू द चेन, जी नेक्स्ट है वो उसको यूज कर सकता है एंड देन ही विल एग्जीक्यूट द रिमेनिंग सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो इंप्लीमेंट करें। इन जनरल सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? इफ यू वांट टू हैव अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिमिटिव, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए? कि only one process can execute or can access the shared resource, means only one process can enter into its critical section at one time. You cannot have two processes. ठीक है, अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आई है, you have to only allow one process. ठीक है, और जब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाएगा, he should be able to execute the other code. Not relevant to this shared resource, you can access it. और डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर वन, फेयर, हर एक की बारी आनी चाहिए। इट शुड नॉट बी बाइस्ड फॉर सम प्रोसेसेस, इट शुड बी एबल टू गिव एक्सेस टू मल्टीपल प्रोसेसेस। बाकियों को भी जो वेट कर रहे हैं सबको बारी बारी एक्सेस हो। एफिशिएंट, बहुत ज्यादा टाइम जो है वेटिंग में नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का। और उसका एक मेजर तरीका क्या है? हर रिसोर्स, हर प्रोसेस जो जहां भी क्रिटिकल सेक्शन बनाता है रिसोर्स को एक्सेस करता है, क्रिटिकल सेक्शन बहुत मिनिमल होना, सिर्फ टू द पॉइंट, सिर्फ उसमें वही कोड हो, वही वाली चीज जहाँ पे शेयर रिसोर्स को एक्सेस कर। जब हर प्रोसेस ऐसा करेगा तो जो बाकियों का वेटिंग टाइम है वो ऑटोमेटिकली रिसोर्स वो कम हो जाएगा। जब रिड्यूस होगा तो दे विल नॉट वेस्ट देयर टाइम इन बिजी वेटिंग। और सिंपल, द मैकेनिज्म शुड बी वेरी इजी टू यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है जी? वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन करनी है, आपने क्रिटिकल सेक्शन इम्प्लाई करना है, तो सिंक्रोनाइजेशन अब आप कर रहे हैं, उस सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? जो भी आप थ्रेड, प्रोसेस, टास्क जिसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे, नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यू हैव टू लॉक द रिसोर्स
जो भी शेयर डेटा आपने एक्सेस करना है उसको आप पहले लॉक करेंगे। तो वेटिंग मैकेनिज्म ये करता है। वेटिंग क्या करता है? वो वेट करता रहता है, जो इसकी बारी आती है तो सबसे पहला काम जो करता है दैट इज द लॉकिंग ऑफ रिसोर्स। तो वो शेयर डेटा को, शेयर रिसोर्स को लॉक कर देता है। एंड whenever it is finished with its critical section it must have to unlock। अगर अनलॉक नहीं करेगा तो बाकियों के लिए वो लॉक्ड रह जाए। इसी तरह डू नॉट लॉक अगेन इफ यू हैव ऑलरेडी लॉक्ड इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म जिसमें सेमाफोर्स हैं, मॉनिटर्स हैं। सो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि जी अच्छा जी लॉकिंग के बाद अगर दोबारा लॉक करते हैं तो क्या मसला होता है, बिकॉज दे यूज वेरिएबल्स फॉर दैट, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपने लॉक कर लिया, डू नॉट लॉक इट अगेन। सिमिलर इज कि इफ यू हैव ऑलरेडी अनलॉक्ड इट तो डू नॉट अनलॉक। And very important is do not spend large amount of data, amount of time in critical section. Critical section छोटे से छोटा है, नहीं, this is very very important, ठीक है। ज्यादा टाइम स्पेंड करना, क्यों? अगर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो बाई लॉकिंग हुई है बाकी प्रोसेसेस के लिए, बाकियों के लिए लॉकिंग हुई है, so they are going to spend a lot of time in waiting state, ठीक है। तो वो वेटिंग में होगा और वेट में टाइम क्या हो रहा है? जाया होता है, ठीक है। तो वो वेट में चला जाता है। So generally we use logs and condition variables for that, which we'll study in the next chapter. That's all for the topic of concurrent processes, and thank you for watching.